Assalamualaikum and good morning, students. I hope you are fine. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamud. Students, I hope that you are enjoying your online classes and you are doing your homework on daily basis. Okay, we were studying lesson number 3 of this book. Lesson number 3 was how animals live. We were discussing about some common functions of all animals like breathing, feeding, movement. In our previous lecture, we started movement in animals. We discussed about how animals move on land and how they move in water and air. Today we'll continue this lecture. Open page number 15. Write down date and day like this. Date is 8th July 2020. C.W is for classwork and day is Wednesday. Okay, let's start. How insects move. We were talking about movement of different animals, that how animals move in their specific environment. So today we will discuss about movement of insects. Most insects have 6 legs. These are pictures of some insects. Examples of insects are ants, grasshopper, honeybee, butterfly, cockroaches, and many more. So mostly insects have 6 legs. Ants and cockroaches use their legs to walk. Beetles, lice, and bedbugs use their legs to crawl on the ground. Some insects, such as grasshopper, use their powerful legs to hop on the ground. Some, such as boatmen, use their legs as oars to move in water. Okay. So all insects have legs, but they use their legs in different ways. It depends upon the environment in which they live. For example, ants and cockroaches, they use their legs to walk. They walk with the help of their legs like this. Beetles, lice, and bedbugs, these use their legs to crawl on the ground. They do not walk, they crawl like snakes, but snakes don't have legs, and these insects have legs and they use their legs to crawl on the ground. Similarly, some insects like grasshopper, they do not walk, they do not crawl, they jump, they hop on the ground, and they have strong hind legs. With the help of them, they hop on the ground, they jump on the ground. Similarly, some insects such as boatmen, they have legs, but they use their legs as oars to move in water. They live in water, and with the help of their legs, they can swim easily in the water. Still, some insects have wings and can therefore fly. For example, wasp, dragonflies, honeybees, butterflies, they have wings. Wasp and dragonflies have 4 wings. The housefly has only 2 wings. Similarly, butterfly has only 2 wings. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर डिफरेंट तरह की मूवमेंट होती है, ठीक है. ऑल दो मोस्टली इंसेक्ट्स हैव लेग्स, बट वो अपनी लेग्स को भी डिफरेंट तरह से मूव कर रहे हैं. कुछ उन लेग्स की मदद से वॉक करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ जो होते हैं वो हॉपिंग करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. एंड सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स लाइक हनीबीज, wasp, dragonflies, and butterflies. Some insects have 2 wings and some insects have 4 wings. So different types की movement हमने देखी insects के अंदर. Come towards next page. Moving long distances, migration. Now what is this? Sometimes it is hard to find food in very cold, hot or very dry seasons. बाज़ क्या होता है कि जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या बहुत ड्राई सीज़न, यानी कि जब बारिशें नहीं होती, इस तरह की सिचुएशन में बाज़ात क्या होता है, कुछ इलाकों में फूड मिलना कुछ एनिमल्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. दे कैन नॉट फाइंड फूड. अब ऐसी कंडीशन में एनिमल्स क्या करते हैं? इन सच कंडीशंस एनिमल्स मूव इन ग्रुप्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड एंड वाटर. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं एनिमल्स? ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, और ग्रुप्स की फॉर्म में वो दूर दराज के इलाकों तक जाते हैं फूड और पानी की तलाश में. इसको कहते हैं माइग्रेशन. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज माइग्रेशन. क्या होती है माइग्रेशन? कि ड्यू टू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हेन इट बिकम डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड वाटर इन अ सर्टन एरिया, सो एनिमल्स मूव इन ग्रुप्स फॉर लार्ज डिस्टेंसेस टू फाइंड फूड एंड वाटर. इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइग्रेशन. ठीक है. एनिमल्स माइग्रेट टू फाइंड फूड एंड वाटर, टू एस्केप फ्रॉम हार्श वेदर और टू फाइंड अ सेफ प्लेस टू रेज देयर यंग वंस. माइग्रेशन के बहुत सारे पर्पजेज़ हो सकते हैं. खाना और पानी ढूंढने के लिए, या अगर वेदर की कंडीशन बहुत हार्श होगी, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, उस चीज़ से निकलने के लिए, बचने के लिए, या फिर अपने बच्चों की परवरिश के लिए किसी महफूज मकाम पे, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें किसी एनिमी से
ख़तरा ना हो, ठीक है। इन तमाम पर्पजेज़ के लिए माइग्रेशन करते हैं एनिमल्स, मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्टन सीजन्स। ओके, द आर्कटिक टर्न इज़ द चैम्पियन ऑफ माइग्रेशन। जो सबसे बड़ी माइग्रेशन देखने में आई है अभी तक उसको कहते हैं आर्कटिक टर्न। क्या कहते हैं उसको? आर्कटिक टर्न। इट ब्रीड्स इन द आर्कटिक ड्यूरिंग समर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 17,000 किलोमीटर टू द एंटार्क्टिक ड्यूरिंग विंटर्स। अब क्या होता है, ये जो ग्रुप होता है ये क्या करता है? आर्कटिक टर्न बेसिकली एक बर्ड है, ठीक है, एक परिंदा है आर्कटिक टर्न। ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। इट इज़ नोन एज द चैम्पियन ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। आर्कटिक टर्न की जो ब्रीडिंग होती है वो होती है समर सीज़न में आर्कटिक रीजन में, यानी कि ये समर सीज़न में अंडे देते हैं और उसके अंडों से बेबीज़ निकलते हैं ड्यूरिंग समर सीज़न इन द आर्कटिक, और फिर ये ट्रैवल करती है डिस्टेंस ऑफ 17,000 किलोमीटर टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर्स, और विंटर्स में फिर ये 17,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। एंड जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर गर्मियों में ये वापस उतना ही डिस्टेंस कवर करके आर्कटिक में जाती है टू ले इट्स एग्स, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि समर के सीज़न में ब्रीडिंग करके ये 17,000 किलोमीटर तक माइग्रेट करती है अंटार्कटिक रीजन में सर्दियों में, एंड देन इट गोज़ बैक टू द सेम डिस्टेंस टू ब्रीड इन आर्कटिक। स्टार्लिंग इज़ अनदर माइग्रेंट बर्ड। एक और माइग्रेंट बर्ड है। माइग्रेशन मोस्टली बर्ड्स में होती है, ठीक है। एक अपने एग्जांपल पढ़ी आर्कटिक टर्न, और एक दूसरा बर्ड है दैट इज़ नोन एज स्टार्लिंग। स्टार्लिंग भी एक माइग्रेंट बर्ड है, यानी कि ये भी माइग्रेट करता है। दे पास थ्रू पाकिस्तान इन ह्यूज नॉइजी फ्लॉक्स टू ब्रीड फर्दर नॉर्थ इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। ये बड़े बड़े ग्रुप्स की सूरत में, और ये पाकिस्तान में से भी गुजरते हैं। पाकिस्तान से गुजरते हुए ये सेंट्रल एशिया तक जाते हैं। इन पंजाब एंड सिंध देयर सडन अराइवल इज़ नोटिस्ड व्हेन इन अ people tree there is an explosion of chattering noise like a sound of a waterfall indicating that a flock has just landed in the tree। पंजाब और सिंध में इनकी जो आमद होती है, इनकी जो अराइवल होती है इन परिंदों की, वो कैसे नोटिस की जाती है कि किसी भी दरख्त पर एक अचानक से एक बहुत ज़्यादा शोर, जैसे लाइक आप कह लें वाटरफॉल की आवाज़ होती है ना, उस तरह की आवाज़ आती है। बिल्कुल अचानक से बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, उससे पता चलता है कि अभी अभी इस दरख्त के ऊपर कोई परिंदों का ग्रुप आकर बैठा है। Next migrant bird is quail. Quail is also a migrant bird. It arrives every year in Pakistan just before the start of the hot weather. ये पाकिस्तान में पहुंचती है तकरीबन गर्मियों के बिल्कुल स्टार्ट होने से पहले। ये तो बात हो रही थी बर्ड्स के बारे में। मैमल्स एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो माइग्रेट। कुछ मैमल्स और इंसेक्ट्स, मैमल्स यानी कि बड़े जानवर जो होते हैं, दे ऑल्सो माइग्रेट। सर्टन टाइप्स ऑफ वेल्स माइग्रेट फ्रॉम द पोलर रीजन्स टू द ट्रॉपिकल ओशंस टू ब्रीड ड्यूरिंग विंटर। वेल्स की कुछ टाइप, वेल फिश जो होती है उसकी कुछ टाइप क्या वो भी माइग्रेट करती है कहाँ से? फ्रॉम द पोलर रीजन टू द ट्रॉपिकल ओशंस टू ब्रीड ड्यूरिंग विंटर। विंटर्स के दौरान वो ट्रॉपिकल ओशन के, वो पोलर रीजन से जाती है ट्रॉपिकल ओशन तक, किस मकसद के लिए? ब्रीडिंग के लिए। मोनार्च बटरफ्लाइज फ्लाई फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर। फिर इंसेक्ट्स की हमने बात की तो मोनार्च बटरफ्लाइज की टाइप्स होती हैं, ये सर्दियों में कनाडा से मैक्सिको माइग्रेट करती हैं। So that was all about migration. If you have any query regarding your lecture, you can ask me freely. Chapter number 3 is finished here. इसका रिटर्न वर्क आपको आपके लेक्चर के साथ व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।